Dear friends, welcome to Civil Conclave presentations. Today we are going to discuss about what will be the cost of a 1,000 square feet house in 2021, considering the today market prices and everything. This I'll be explaining in Hindi and English simultaneously. दोस्तों, सिविल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन में आपके स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए 2021 में क्या कास्ट रहेगी, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर a building developments of two classification, regular and engineer, which is cost up to the 60% of the development cost of the building materials. While building a house, understanding and examining the materials is essential. It is essential to have a reasonable plan to appraise the costing and amount components of the materials to get the best result. The assessment of the materials for the development relies upon the built-up area, contingents upon the project workers or manufacturers. Assessment statements may fluctuate. Here I am giving a standard estimate of raw material for a 1,000 square feet house. दोस्तों, ये रॉ मटेरियल जो बिल्डिंग में जो लगता है उसके दो क्लासिफिकेशन होता है, वो एक है रेगुलर है और इंजीनियर्ड है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है 60% आपका बिल्डिंग कॉस्ट में आ जाता है। आपको बिल्डिंग बनाने के पहले आपको मटेरियल के बारे में समझना और उसको परखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, एक रीजनेबल प्लान होना चाहिए। आपको कास्टिंग करके आपको अमाउंट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का खर्चा कितना होता है वो देखना ज़रूरी है। ये जो असेसमेंट है ये बेस करता है आपका बिल्टअप एरिया, लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर मटेरियल, ये सबका ऊपर रहता है। इधर हम आपको 1000 स्क्वायर फुट का घर का क्या होगा एक अप्रॉक्सीमेट कास्ट 2021 में आज के बिल्टअप रेट के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। Cement plays a vital role in the construction. It is required for concrete, brick masonry, plastering, etc. Quality of the cement works you will be blended with the right amount of water, sand and aggregates. The cement is available in three different grades. PPC or PSC are used for masonry and finishing purposes, whereas OPC is generally preferred for concreting. दोस्तों, सीमेंट है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अहम भूमिका निभाता है। इसका कारण आपको आरसीसी, बांधकाम, प्लास्टर ये सब जगह में ये सीमेंट वापरा जाता है। ये क्वालिटी सीमेंट जब भी आपको अच्छी मटेरियल का एग्रीगेट, सैंड, पानी ये सब बराबर मिलने से आपको अच्छी क्वालिटी का काम निकलता है। ये सीमेंट है 3 ग्रेड में मिलता है। पीपीसी और पीएससी जनरली हम लोग को बांधकाम और प्लास्टर में वापरते हैं। ओपीसी हम लोग को कंक्रीटिंग में वापरते हैं। Of the total material cost, cement required is up to 16%. Around 0.4 cement bags is used per square feet of construction. That makes a total of 400 cement bags in a 1,000 square feet house. ये जो टोटल मटेरियल कास्ट में सीमेंट का भूमिका है 16% है। 0.04 बैग होता है 1 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन के पीछे। अभी 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए अपन को 400 बैग का सीमेंट लगेगा। ये रहा आपकी जो दिस इज अ प्लान फॉर अ 1,000 स्क्वायर फीट हाउसेस विच इज शोन इट हियर। दोस्तों, ये है आपके 1000 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा घर का मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। रेती sand is used for RCC, mortar, plaster, filling and flooring too. Sand should be well graded and free from the silt or any organic material. On the total material cost, the sand contribution is up to 12%. Around 1.8 CFT is required for a square feet. That means 1800 square feet of a CFT of sand is required for a 1,000 square feet of house. See, the image of the sand has been shown below.
रेती रेती जनरली हम लोग को आरसीसी काम, रेती माल, प्लास्टर, फिलिंग, फ्लोरिंग, ये सब जगह में वापरते हैं। ये रेती है अच्छी ग्रेड और सिल्ट के बिना रहना जरूरी है। ये टोटल मटेरियल कॉस्ट में रेती का कंट्रीब्यूशन है 12% है। एक 1.8 CFT लगता है पर स्क्वायर फीट का काम करने के लिए। इसके लिए अपन को 1000 स्क्वायर फुट का काम करने के लिए 1800 स्क्वायर फुट का रेती लगेगा। कोर्स aggregate are generally used for concreting. It should be clean and dense to increase the strength of the concreting. 1.35 CFT used per square feet, that makes a total of 1350 CFT for 1000 square feet. The contribution of aggregate is up to 8% of the total material cost. कोर्स एग्रीगेट, दोस्तों कोर्स एग्रीगेट जनरली हम लोग कंक्रीटिंग में वापरता है। ये क्लीन होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, इसका कारण आपका कंक्रीटिंग का स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। 1.35 CFT लगता है आपको 1 स्क्वायर फुट काम करने के लिए। सो इसके लिए 1000 स्क्वायर फुट का काम करने के लिए 1350 CFT कड़ी लगेगा। ये कड़ी का कास्ट है आपको 8% का मटेरियल कास्ट का टोटल होता है। ये रहा टाइप ऑफ अ मटेरियल जो मेटल का आपको दिखाया हूं। Reinforcement bars, the most crucial component in the concrete. They are available in various grades. Most commonly used are Fe500 and Fe415. Reinforcement consumption per square feet built up area is 2.1 kg per square feet. That makes 2100 kg of a bars of 1000 square feet. The contribution of the steel of the total material cost is 24%. The image has been shown below. Reinforcement, दोस्तों reinforcement बार बिल्डिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये बहुत वेराइटीज़ का ग्रेड में मिलता है। आजकल जनरली हम लोग Fe415, Fe500 वापरते हैं। ये जो छोटा बिल्डिंग में ये 2.1 kg पर स्क्वायर फुट वापरते हैं। सो अपन 1000 स्क्वायर फुट बिल्डिंग में अपन को 2100 किलो लगेगा। ये स्टील का जो खर्चा है 24% आपको मटेरियल कास्ट में यूज हो जाता। Bricks are used for masonry construction. The most common bricks used is 9 inches wall construction, which is of 9 inches by 4 inches by 3 inches. The bricks should be uniform in color, size and sharp edges. For 1000 square feet, you require a minimum 25 to 34,000 bricks. This will cost you 5% of the total material cost. ईट, दोस्तों ईट है मैसनरी बांधकाम में वापरता है। जो जनरली वापरते हैं उस बांधकाम का ईट का साइज होता है 9 इंच बाई 4 इंच बाई 3 इंच है। ये है यूनिफॉर्म कलर, साइज, ये सब में होना है। 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए आपको 25 से लेकर 34,000 ब्रिक्स तक लगेगा। ये है आपको 5% मटेरियल कास्ट का टोटल पकड़ता। Painting of wall brings color to the house. Paints used for construction are two types: interior paints and exterior paint. Paint should be waterproof, durable and highly resistant to climatic conditions. The internal external consumption of the paints for walls per square feet built up area is 0.14 liter and 0.04 liter respectively. Paint's contribution is 4% of the total material cost. दोस्तों पेंटिंग है आपके कलर का रंगीन और अच्छी दिखाती है। पेंट है दो टाइप का होता है, एक इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट है। पेंट्स हैं वाटरप्रूफ होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन का रेजिस्टेंट होना चाहिए। ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंजम्पशन ऑफ पेंट है बिल्टअप एरिया के हिसाब से 0.14 लीटर अंदर का
0.04 लीटर बार का कंजप्शन होता है। पेंट कंट्रीब्यूशन है 4% ऑफ द टोटल मटेरियल कास्ट में वापरा जाता है। टाइल्स, vitrified tiles are mostly common use tile for flooring. They are high strength and water absorbent ceramic tiles for flooring. Other than the tiles, marble, granite and various other components also can be used. Of the total material cost, tile consumption is up to 8%. If the tiles are 2 feet by 2 feet, then the minimum number of tiles is required 80 to 100. The image of the vitrified tiles has been shown here. टाइल्स दोस्तों, विट्रीफाइड टाइल्स हैं, ज़्यादा से करके बिल्डिंग में वापरा जाता है। ये हाई स्ट्रेंथ है, वाटर अब्जॉर्बेंट है। ये विट्रीफाइड टाइल्स के सिवा आपकी पॉकेट के खर्चा के हिसाब से मार्बल, ग्रेनाइट और कंपोजिट मार्बल, इटालियन मार्बल, कोई भी चीज़ आप वापर सकते हैं। ये मटेरियल कास्ट है में 8% आपको ये विट्रीफाइड टाइल्स का खर्चा होता है। ये टाइल है 2 फीट बाई 2 फीट रहेगा। मिनिमम नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड है 80 से लेके 100 होता है। ये रहा आपको टाइल का इमेज है। अदर मटेरियल्स यूज्ड इन द हाउस, दिस इंक्लूड्स प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, वुडन प्रोडक्ट्स लाइक डोर्स एंड विंडोज, बाथरूम एक्सेसरीज. द ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट कैन बी 23%. द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मटेरियल्स may vary from person to person choice. The detail mentioned above are the estimation of approximation of the total material cost and quantities required for constructing a 1000 square feet house. The material cost and amount may vary depending upon the quality, location and the brand. These tips may give you a rough idea to select the materials and procure it so that you can avoid the wastages. दोस्तों, दूसरा मटेरियल बिल्डिंग में जो जो वापरते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जो पहले मेंशन किया, इसके सिवा आपका बिल्डिंग में प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, लकड़ी का दरवाज़ा, खिड़की, बाथरूम फिटिंग, ये सब कुछ वापरा जाता है। इसकी कास्ट है 23% आपको यूज़ हो जाता है। ये जो रिक्वायरमेंट है आपका वेरी होता रहेगा, जैसा घर बनाना चाहेगा उसके हिसाब से होता है। ये जो भी हमने बता रहा था, ये सब खाली एस्टिमेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। 1000 स्क्वायर फुट का घर है, ये जो कास्ट है ऊपर नीचे हो सकता है। आपकी प्रोजेक्ट का लोकेशन, ब्रांड क्या करते हो, ये सब बर्फ से होता है। ये आपको एक रफ आइडिया देगा, इसके हिसाब से आप सोच समझ के आप मटेरियल खरीद सकते हो, आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कास्ट बचा सकते हो। ये रहा image of the electrical wiring. This is the image of the sanitary fittings. These are all the images of the doors and windows. Task involved in building house, design and planning. Before consulting an architect, one should put all thoughts together to get a brief idea about the project constructing within the budget. To obtain the design of your priorities gets difficult if you don't find the right person to do it. Architects can't imagine themselves to design it according to our views. You need to be more careful while planning, as it leads to becoming a unsatisfied in the end if you miss out something. दोस्तों, घर बनाने के लिए आपको पहले डिज़ाइन प्लानिंग जरूर होना है। आप किसी आर्किटेक्ट का कंसल्ट करने के पहले आपको खुद को समझ में आना चाहिए आपकी बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ देना है, कितनी बेडरूम देना है, कितनी किचन देना है, ये सब कुछ आपको पहले समझ में आना चाहिए। ये तब तक आप प्रायोरिटी लाइनअप नहीं करोगे, आपको बिल्डिंग बराबर नहीं बनेगा। ये जो आर्किटेक्ट है वो आपको मन में क्या है वो समझ में नहीं आएगा था। इसके लिए आपको जो भी है आप आर्किटेक्ट को समझा कि ये सब कुछ बराबर करना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग बनेगा, नहीं तो आपको पसंद नहीं आएगा। ये रहा एक बिल्डिंग का इमेज है, एक छोटा सा बिल्डिंग का इमेज है। अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। अप्रूवल द बिल्डिंग प्लान इज अ लॉन्ग प्रोसेस as they involve government and municipal laws.
You need to submit many applications for the building plan, sanction like commencement, drainage, water and power connection, and possession certificate, fresh building plan, site demarcation, and other permission. Before starting the construction, one should get all the clearance from the local authorities to avoid further interruption. दोस्तों, अप्रूवल गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्या क्या अप्रूवल लेना है, ये बिल्डिंग प्लान अप्रूव करना बहुत बड़ा प्रोसेस है, बिकॉज इसके अंदर गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी सब इन्वॉल्व होता है. इसके लिए आपको बहुत अप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, बिल्डिंग प्लान देना पड़ेगा, लाइक commencement certificate, drainage certificate, water certificate, power connection, possession certificate, building plan, site demarcation, another permission आपको अप्रूवल के लिए सबमिट करना पड़ता. आप बिल्डिंग चालू करने के पहले जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब गवर्नमेंट से क्लैरिटी ले लेने का, नहीं तो आपके कंस्ट्रक्शन में इंटरप्शन आ सकता है. कॉन्ट्रैक्ट. Finding a right contractor for your project is not easy because everyone cannot understand your needs to make it work without any difficulties. Searching and choosing from the selected list, making arrangement, explaining the project plans, and finalizing the contract is tedious process if you are working alone. If you don't find the right person, then you live to face many problems to get your work done. दोस्तों, अभी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे. सही कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई आदमी आपकी जो चॉइस है, आपकी जो तकलीफ है वो समझता नहीं है, और ये और बड़ा मुश्किल होता है समझो आप अकेला काम करेगा तो. ये आपको करने के लिए पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्शन लिस्ट बनाना पड़ता है, उसको प्रोजेक्ट के बारे में समझाना पड़ता है, आपको एस्टिमेटेड कास्ट क्या रहेगा ये सब कुछ आपको उसका समझाना पड़ता है. आप सही कॉन्ट्रैक्टर चुनेगा नहीं है, आपके कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ तकलीफ में आ सकता है. अभी कास्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन द अबव डाटा फॉर कंस्ट्रक्टिंग 1000 square feet house. Cement. A bag of cement costs around 400 rupees. To build a house of 1000 square feet, we need around 400 bags, which will cost 1,60,000 rupees. Steel costs 45 rupees per kg. We require around 2.1 metric ton, which will cost 94,500 rupees. Fine aggregate, it costs 65 rupees per CFT. We require 1,800 square feet, the 200 square feet of crushed sand, including of 200 CFT, including and wastages and bulkages. It costs around 1,30,000. दोस्तों, अभी हम कास्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, 1000 स्क्वायर फुट के बारे में. सीमेंट है, सीमेंट बैग है, करीब करीब 400 रुपये का भाव से बिक्री होता है. आपको 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए आपको 400 बैग सीमेंट लगेगा. 400 के हिसाब से आपको 1,60,000 रुपये खर्चा होगा. स्टील है 45 रुपया kg है. अपन को 2.1 मेट्रिक टन लगेगा, क्योंकि हम छोटा सा घर बनाते हैं. इसकी खर्चा होगा 94,500 रुपीज़. फाइन एग्रीगेट सैंड नहीं तो क्रश सैंड, ये है 65 रुपये पर CFT है. अपन को लगेगा 1,800 स्क्वायर फीट CFT है. हम पकड़ते हैं 2,000 CFT, क्योंकि वेस्टेजेस, बल्केजेस सब कुछ होता है. इसकी खर्चा रहता है 1,30,000 रुपये. कोर्स एग्रीगेट costs us 28 rupees per CFT. We need 1,500 CFT, that is inclusive of 150 CFT wastages, which means the cost will be 42,000 rupees. We need 25,000 bricks, including wastages and breakages. Each bricks at the rate of 9 rupees will cost you 2,25,000 rupees. Vitrified tiles for a kitchen, bathroom, bedroom, etc. at the rate of 45 rupees per square feet. We require 1,100 square feet houses tiles, which will cost us 49,500 rupees. दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट है, इसकी भाव 28 रुपया CFT है. अपन को लगेगा 1,500 CFT. इसमें 150 CFT वेस्टेजेस ये सब कंसिडर करके, इसका मतलब ये कोर्स एग्रीगेट का कास्ट है अपन को 42,000 होता है. 25,000 ईंटें लगेंगे
ब्रेकेजेस वेस्टेज सबको मिला के एक ब्रिक का रेट है 9 रुपया। इसका मतलब ईंट का खर्चा होगा आपको 2,25,000 रुपया। टाइल्स है, ये हम लोग को बाथरूम, हॉल, किचन, बेडरूम हर जगह में वापरते हैं। इसकी रेट है 45 रुपया पर स्क्वायर फुट है। अपन को लगेगा 1100 स्क्वायर फुट टाइल्स है। इसकी खर्चा 45 रुपया का भाव से 39,500 रुपया। सरामिक टाइल्स है, डैडो के लिए लगता है। इसका रेट है 20 रुपये स्क्वायर फुट है। अपन को 300 स्क्वायर फुट लगेगा। इसकी खर्चा होता है आपको 6,000 रुपया। ग्रेनाइट फॉर किचन, इसका रेट है this will be rate is 150 rupees per square feet. We require 20 square feet, which will cost us 3,000 rupees. Quota 40 rupees square feet. We require 250 square feet. It will cost 10,000 rupees. Door frame 1,800 rupees per unit. We require 8 unit, which will cost us 14,400. Door, main doors and flush doors. Main door 3,500 rupees, which will cost us 17,500. Flush doors will cost you 7,500. Labor rate, we consider an average labor rate of 200 rupees per square feet. It will cost you around about 2 lakh rupees. Window grill, it will cost you 1,800 rupees per grill. We require 4 grills, which will cost you 7,200 rupees. Sliding door, 2,500 rupees per window, 4 units, it will cost you 10,000 rupees. Water tank, 6 rupees per liter, quantity is 1,000 liter, so the cost is 6,000 rupees. Painting and wall putty, rate 12 and 15 rupees, so we require a cost of 60,000 rupees. Plumbing cost approximately 30,000 rupees. Electrification cost will be 50,000 rupees. Excavation and filling will be 30,000 rupees. Extra item will be 50,000 rupees. दोस्तों, अपन को घर बनाने के लिए, किचन प्लेटफॉर्म के लिए ग्रेनाइट लगेगा 150 रुपये का भाव से। अपन को लगेगा 20 स्क्वायर फुट, इसका खर्चा होता है 3,000 रुपया। कोटा है आपको स्टेयरकेस में लगेगा, ये 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से 250 स्क्वायर फुट लगेगा, 10,000 रुपये का खर्चा है। डोर फ्रेम है, आपको मेन डोर 4 लगेगा, 8 लगेगा, उसकी कास्ट होता है 14,400। दरवाजा है, मेन डोर और बाथरूम डोर्स है। अभी मेन डोर्स हैं, जो मेन डोर बाथरूम डोर है वो आपको 5 लगेगा, 3,500 का भाव से 17,500। बाथरूम और टॉयलेट में लगेगा 3 दरवाजा, इसकी खर्चा 2,500 का भाव से 7,500 रुपया। लेबर रेट है, अपन पकड़ते हैं 200 रुपया पर स्क्वायर फुट का लेबर रेट है। एवरेज कॉस्ट है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसकी खर्चा होगा आपको 2 लाख रुपया। विंडो का ग्रिल है, 1,800 रुपये ग्रिल का कास्ट पकड़ते, 4 ग्रिल लगेगा आपको 7,200 रुपया। स्लाइडिंग विंडो 4 लगेगा, 2,500 का भाव से 10,000 रुपया। पानी का टाकी 6 रुपया लीटर है, सिंथेटिक टैंक्स है। 1,000 लीटर का टाकी लगेगा, उसकी खर्चा होगा 6,000 रुपया। पेंटिंग है, 12 से लेकर 15 रुपया स्क्वायर फुट है, इसकी खर्चा होगा आपको 60,000 रुपया। प्लम्बिंग कास्ट है आपको 30,000 अप्रॉक्सीमेट लगेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन 50,000 रुपया लगेगा। एक्सकेवेशन फिलिंग 30,000 रुपये लगेगा। और एक्स्ट्रा आइटम्स जो भी है अनएक्सपेक्टेडली होता है, उसकी खर्चा अपन 50,000 करते हैं। अभी now we will work out the total cost of the 1,000 square feet house based on the above analysis. Cement is 1,60,000, steel is 94,500, sand 1,30,000, coarse aggregate 42,000, bricks 2,25,000, vitrified tiles 49,500, ceramic tiles 6,000 rupees, granite 3,000, quota 10,000, door frame 14,400, door shutter 25,000, grill 7,200, aluminum window 10,000, water tank 6,000, painting 60,000, plumbing 30,000, electrification 50,000, excavation and filling 30,000, extra item 50,000, labor rate 2 lakhs, architects and municipal charges 1,50,000, supervision charges 50,000, waterproofing cost 35,000. So the total cost will be 12,37,200. Hence, cost per square feet, let us say 1,238 rupees
per square feet. This may go up and down depend upon the project location, the amenities what you are providing, what your design. It's all based on that. This is only a rough outlay to work out your costing. दोस्तों, अभी 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए क्या खर्चा होगा? सीमेंट है 1,60,000 रुपया हो गया, स्टील है 94,500 रुपया, रेती है 1,30,000 रुपया, कड़ी है आपको 42,000, ईट है 2,25,000, विट्रीफाइड टाइल्स है 39,500 रुपया, सरामिक टाइल्स है 6,000 रुपया, ग्रेनाइट है 3,000 रुपया, कोटा है 10,000 रुपया, डोर फ्रेम है 14,400, डोर शटर है 25,000, ग्रिल है 7,200, एल्यूमिनियम विंडो 10,000, वाटर टैंक है 6,000 रुपया, पेंटिंग है 60,000 रुपया, प्लम्बिंग है 30,000, इलेक्ट्रिफिकेशन है 50,000, एक्सकेवेशन और फिलिंग है 30,000, एक्स्ट्रा आइटम 50,000, लेबर रेट है 2 लाख, आर्किटेक्ट और म्यूनसिपल चार्जेस होगा 1.5 लाख रुपया, सुपरविजन चार्जेस 50,000, वाटर प्रूफिंग कास्ट है 35,000। ये सब मिलकर टोटल कास्ट होता है 12,37,600 रुपया। इसका मतलब रेट पर स्क्वायर फुट होता है 1,238 रुपया। दोस्तों, ये रेट है ओनली एन आउटले है। इसकी खर्चा आगे पीछे हो सकता है, जैसे आपके प्रोजेक्ट कहाँ होता है, वहाँ का मटेरियल कास्ट क्या होता है, लेबर रेट क्या होता है, इसका भरोसा में रहता है। ये खाली ये ना आइडिया है, आपकी एस्टिमेट कैसा किया जाता है। Thank you for watching this presentation. Kindly subscribe, like and share, which will motivate me for a further good presentation. In case any queries, do not hesitate to write to me. The response shall be at the earliest. Images courtesy is Google. You can contact me at civilconclave@gmail.com or at my Telegram groups, Civil Conclave Telegram group. The link is been provided as below. दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद है। आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक कीजिए, इसके कारण हम मोटिवेट हो गया और आपको अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ समझना है, आप मुझे लिख सकता है civilconclave@gmail.com, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सिविल कॉन्क्लेव टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक है यहाँ दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वंस अगेन. Kindly subscribe, like and share so that I can give you